Please take seats. Hello. We are running out of time. कोई बाहर से लोगों को तरफ चली जाने दिए उनको। I think this one is okay. May I request last time to please all of you take a seat. Before I start, I would like to recognize two people. Mr. Hassan Kamal, who is here from Atlanta, is the founder of Aligarh Alumni Association. खड़े हो जाएंगे वजन साहब. Dr. Bhagat here, who is actually one of the founders of the Sadbhav Mission, or its predecessor, that Forum for Secular India. I welcome you all to this assembly. This is an assembly of concerned people of Indian origin belonging to various organizations in this area. And we have gathered here really to explore and discuss the non-violence as the doctrine of resistance against injustice. So I want to make it very clear, this is not a political gathering. This is not for or against any individual or any group of individual or any political party. This has been a long tradition of Sadbhav Mission for over 3 decades, and its predecessor, Forum for Secular India, to meet occasionally and take stock of the plight of the Indian people, common man, and also see the progress we have made towards achieving a inclusive secular democracy. So that's the thing. And before we start, there has been a lot of violence in the United States recently, in a few months, and to show our concern about that, I'm inviting Tariq Faruqi
to say a few words. Tariq is the founding member of Aligarh Alumni Association and very well respected in the community and concerned and well informed. Tariq. Tariq. I hope you can hear me. As Abdullah said, as Dr. Abdullah said, I mean, we would be remiss if we don't acknowledge what has been happening in the country that we have adopted, the United States of America, especially the gun violence. Last month, on May 24th, in southern Texas, an 18-year-old gunman entered an elementary school and randomly shot and killed 19 fourth graders. These are 10-year-old kids and 2 teachers, while wounding 17 others. Imagine the pain and the trauma of the parents. Unfortunately, such mass shooting is not rare in our adopted country. According to one count, there has been more than 250 mass shootings in the United States just this year. Note that we haven't completed 6 months, and we have 250 mass shootings. Mass shootings, I think, is defined as at least 4 people shot in any one gathering. We hope and pray that our leaders can stand up to the powerful gun lobby and common sense gun laws, control laws are enacted to control this recurrent madness. While we are celebrating nonviolence, let us observe a moment of silence while we pray and think about the innocent lives lost in each of these senseless and horrific occurrences. 1 minute of silence, please. Thank you very much. COVID is still around actually. A lot of people who were supposed to be here could not make it. But anyway, to move on and to introduce the Party Saab's topic, I'm going to read a few lines of a 13th century Persian poet, Sheikh Sadi. These are inscribed in a large handmade carpet and is hanging on the wall of the United Nations. The poem is in Persian. It is not my translation, someone translated it and I'm going to read it. All human beings are member of one frame, since all at first from same essence came. When time afflicts a limb with pain, the other limbs at rest cannot remain. If thou feel not for others' misery, if thou feel not for others' misery, a human being is no name for thee. That's the essence of non-violence. The same thoughts are from Gautam Buddha. When you see yourself in others, it's impossible to hurt anyone else. So that is the essence of the non-violence, I guess. And Dr. Tripathi, he does not need any introduction to these people. He, after retiring, before he retired as a professor at IIT, Delhi, he used to come every summer and he had founded the Forum for Secular India over here. Dr. Madad, a lot of other people here, they were part of it. And so he is sincerely doing it, although his movement has not taken a momentum because it's with a very meager resource. But his sheer courage, his commitment, and we all applaud.
And actually he believes, I guess, what Ahmad Farad has said, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. Instead of complaining about the darkness of night, it is better that you lit your own candle. So with these words, I invite Professor Tripathi. बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब. मुझे बेहद खुशी है कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं. मैं 4 साल के बाद आया तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 बातों पे अपनी कुछ बात रखूँ. एक तो है, वैसे तो मेरा तो बात मुझे रखनी है, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनजस्ट पॉलिसीज एंड वायलेंस. Policies are made by the state and violence is seen on the streets, as well as violence is also carried out by the armed forces, police and military. Both kinds of violence has to be addressed and dealt with, non-violence. In what way it can be done, I have no clear idea about it. But I have been making some efforts to find a way out. Before I start, because I took so much of your time in explaining the exhibition over there, which was a theory. So if you permit, Abdullah Sahab अगर इजाजत दे तो एक गजल के 2-3 शेर सुनाऊं, उसके बाद मैं अपनी बात रखूं. गुजरात में जब वायलेंस हुआ तो मैं दिल्ली में घूम रहा था. उस वक्त मेरे दिमाग में एक शेर आया, बाद में 2 शेर और जोड़ लिए उसमें, तो मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ आपको. धुआं धुआं सा फज़ाओं पे आज तारी है, न जाने कौन जला है ओ किसकी बारी है. धुआं सा फज़ाओं पे तड़पती रूह से वो पूछते हैं जात धर्म. तड़पती रूह से वो पूछते हैं जात धर्म. अभी भी खाक उन्हें जान से भी प्यारी है. धुआं धुआं सा फज़ाओं पे मेरे करीब से गुजरेंगे तो वो देखेंगे कि बुझती राख में बाकी कोई चिंगारी है. धुआं धुआं सा फज़ाओं पे आज तारी है. पहली बात तो ये बताएं, अगर किसी को मेरी हिंदी उर्दू में दिक्कत आ रही हो तो अंग्रेजी में बोलूं या जैसा मुनासिब समझा मुझे हुक्म कर दें. जी बीच बीच में थोड़ी अंग्रेजी बोल दूंगा. वैसे ऐसा है कि
I would like to begin with 2019. 2019 में हिंदुस्तान में दो चीजें हुई. First, I would like to talk to you about the violence or rather through the unjust policies of the state. When 2019 election was held, a few months before that, there was a terrorist attack on a military convoy in Pulwama, Kashmir. उस वक्त कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली थी, उन्होंने कैंसिल कर दी और सबने कहा कि we are together with the state, with the prime minister, with the government in this moment of grief and there is a security threat. ऐसा कई बात हुई. This is all right. लेकिन वो तो एक लड़का था. It was just a boy. अदनान जिसने कार लाके हमला किया था, मिलिट्री कॉन्वॉय की एक बस को मारा था, उसमें 45 लोग मारे गए थे. It was very sad. लेकिन उस लड़के का, वो हिंदुस्तान का लड़का, कार हिंदुस्तान की, जो फेलियर हमारे सर्विलेंस सिस्टम का हुआ वो भी हिंदुस्तान का था. हमने दोष मर दिया पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेवार, हम उससे बदला लेंगे. बदले में भी कोई खास हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे तो हमसे ज्यादा नहीं किया, सिवाय इसके कि एक बालाकोट में एक बम गिरा दिया. उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ. लेकिन दैट इज अ वेरी माइनर पार्ट ऑफ इट. इसका जो सबसे बुरा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में जुनून पैदा हो गया. जुनून मरने से भी बदतर है और वो हुआ. और इसका निशान मुझे मिला 2 महीने के बाद जब चुनाव हुए तो मैं जगह जगह कैंपेन करता फिर रहा था कि भाई आप जुनून में बहकर वोट न डालें. देश की सुरक्षा का मामला अलग है और आप वोट, कोई भी सरकार आएगी वो तो मिनिमम सिक्योरिटी ऑफ द नेशन का ख्याल करती है. आपके सामने दूसरे मसले हैं और सबसे गंभीर मसला है कि हिंदुस्तान में तफरका पैदा हो रहा है इंसान के दरमियान. उसको रोकने की जरूरत है. हमारी आंखों में पर्दा पड़ रहा है. जो हमारे रियल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज, एजुकेशनल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, हम इंसान के मर्तबे से नीचे गिर रहे हैं, उसको हम सामने रख के वोट डालें, ऐसा हमने बात रखी. मैं भोपाल गया. जब भोपाल गया तो एक पर्चा मेरे नाई को दिया. हमने कहा कि भाई चुनाव के बारे में हमारा पर्चा पढ़ो. 2-4 लोग गाल बनवा रहे थे. तो कहता है कि राहुल गांधी का बाप कौन? मतलब मेरा राहुल गांधी की कोई चर्चा नहीं, कोई नहीं था. उसने ये सवाल छेड़ा. तो मैंने कहा कि राहुल गांधी का बाप भगवान है और तुम्हारा और हमारा बाप ही भगवान. तो कहने, तो फिर खामोश हो गया. अगले दिन मैं विदिशा गया तो वहां पे सड़क पे मैं पर्चे बांट रहा था. तो कुछ लोग झाड़ू लगा रहे थे, उनसे बातचीत करी तो 4-6 लोग जमा हो गए. इतने में कोई एक मोटरसाइकिल से एक साहब आए, वो सैफरन कलर का अंगूछा वगैरह गले में डाले हुए, कहने लगे काय का पर्चा बांट रहे हो? अरे हमने कहा तुम भी पढ़ो भाई, ये चुनाव के मुद्दे उठाए, हमने 5-7 मुद्दे उठाए थे. तो हमने कहा बस जुनून में बह के वोट मत करना. तो हमसे पूछते हैं जवाहरलाल नेहरू का बाप कौन? मैंने कहा कि कल यही सवाल मुझसे एक नाई ने पूछा था भोपाल में. उसको मैंने जवाब दिया था कि राहुल गांधी का बाप भगवान है और जवाहरलाल नेहरू का बाप भी भगवान है, तुम्हारा हमारा भी. खैर, कहने का मेरा मकसद ये कि वो जो जुनून बालाकोट के मसले से खड़ा हो, वो इतनी गहराई तक हमारी रगों में जहर भर गया कि हमारी जो साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी के दबा के रखो, कुचल के रखो, अपने मुल्क के आवाम को भी दबा के रखो, पड़ोसी मुल्कों को भी दबा के रखो, ये जुनून पैदा हो गया. अहिंसा का माने क्या? अहिंसा के माने ये कि हम आंख खोल के देखें दूसरे इंसान को. जैसे अभी अब्दुल्ला साहब बड़ी गजब की बात कही कि दूसरे में भी अपने को देखें. उस आप आदर्श तक भले ही ना पहुंच सके, लेकिन मोटी मोटी बात है कि भाई अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, सबको इज्जत और आजादी से रहने का हक दिया, मालिक का दिया. किसी का कर्म, किसी का लिहाज नहीं है, किसी की खैरात नहीं.
और आप उस पर हमला करो क्योंकि वो कमजोर है, उसके पास आप जैसे बम नहीं है, या आप जैसी दौलत नहीं है, या आप जैसा मीडिया नहीं है, ये क्या बात है? तो अहिंसा का पहला स्टेप ये है कि हमारे लिए जब हम किसी के बारे में सोचे, किसी मसले पे सोचे, किसी अवाम के बारे में सोचे, तो अपने और गैर का फर्क करके ना सोचे, सच देखने की कोशिश करें। पहला काम तो ये। तो हम उसमें चूक गए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश तो की, मैं कई जगह इलेक्शन कैंपेन में घूमा, फरुखाबाद भी गया, रोहित भी गया था यहाँ से, लेकिन मैंने महसूस किया कि वहां पे किसी पार्टी का कोई वर्कर कैंपेन नहीं चला पा रहा था। जब मैं परिचय देता था तो आम लोग कहते थे कि आपने बातें तो सही उठाई, लेकिन उस गली में 4-6 लोग हमारे लिए मिल जाते थे। वो कहते काय का पर्चा बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो, दिल्ली से क्यों आए, वगैरह वगैरह, और बलकर बातें करते थे। यानी सेक्टेरियन माइंड के लोग गली गली में घूम रहे थे। तो जो लोकल किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, समाजवादी पार्टी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, उसने हिम्मत नहीं की। इसलिए आई डोंट रियली ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज कि वो इनएक्टिव हो गई है, मर गई है, या प्रो हिंदू हो गई है, या सेक्युलर किस्म का हिंदुत्व चला रही है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में खौफ का मंजर है और उसको बदलने की जरूरत है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी ही बदलेंगी, इनमें हिम्मत आने की जरूरत है। तो थोड़ा सा एडवर्स कंडीशंस की वजह से वो सबड्यूड हो गई है हिम्मत, उसको फिर से जगाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में बहुत जान। तो एक बात तो मुझे कहनी थी कि आई थिंक वी मेड a tactical mistake in not recognizing the severity of the impact of Pulwama attack on Indian politics. Second problem came in on August 5, 2019, when the government passed a bill on Kashmir. आमतौर पे आप सब लोगों को पता होगा कि 370 का दर्जा खत्म कर दिया, उसी की ज्यादा चर्चा होती है। मैं मानता हूँ सेकेंडरी, छोटी चीज। असली चीज क्या हुई, उसके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। और उसकी ग्रेविटी का मुझे एहसास हुआ जब मैं कश्मीर गया। ये बात हुई अगस्त में तुमने बंदिश लगा दी, नोबडी कैन गो देयर। तो 2-3 महीने तक तो बंदिश लगी रही। अब आम पे तो बंदिश 4 महीने लगी रही। हर आदमी के घरों को कैद कर लिया, उनके टेलीफोन लाइन काट दी, वगैरह वगैरह, मोबाइल बंद कर दिए। तो उनको स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, कारोबार रुक गए लोगों के, सेब का काम तो तबाह हो गया। तो बहुत परेशानी में फंस गए लोग। वो तो हुआ। जब मैं नवंबर में उधर गया तो मुझे एक बड़ा सुकून मिला कि पहली मर्तबा नॉन वायलेंस यहाँ पर एक्टिव है। क्या किया, वहां के जो दुकानदार थे कश्मीर के, उन लोगों ने सुबह दुकान खोलते थे 9 बजे, 11 बजे तक चलाते थे। फिर 11 से 5 बंद रखते थे, ऐसे मोड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। और 5 बजे से 7 बजे तक फिर दुकानें खुलती थी। और ये कई महीने चला, पूरे कश्मीर में चला। मैं मानता हूं कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दोस पीपल हैव टेकन, व्हिच वाज व्हिच रिमाइंड्स अस बहुत अच्छा। आई कैन हियर इट नाउ ऑफ नॉन वायलेंस। इसी की जरूरत है। अभी तक कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ, लेकिन वो स्ट्रगल चलाने की जरूरत है। एंड आई थिंक सिमिलर स्ट्रगल्स विल ब्रिंग डेमोक्रेसी इन द स्टेट, will bring peace to the state. तो लेकिन वो एक हमने देखा हुआ। एक बात और कि मैं जब फिर दूसरी मर्तबा गया अभी जुलाई 2022 में, जुलाई 2021 में 4-5 दिन के लिए गया। मैं श्रीनगर से अनंतनाग जा रहा, तो शेयर्ड टैक्सी थी, 6 लोग बैठे थे उसमें, 5 या 6 थे। एक साहब बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि अनंतनाग। किससे मिलने जाना है? कोई दोस्त है, रिश्तेदार है क्या? मैंने कहा रिश्तेदार तो नहीं। तो मैंने कहा लोगों से मिलने जा रहा हूँ। तो बोले पर्पस क्या है? हमने कहा हालात देखने हैं, लोगों के हालात कैसे। तो बोले, उसने बड़ी गजब की बात की। उसने कहा कि ऐसा है कि 4 बातें आप हमारे कश्मीर के लिए करा दो तो लोगों को बड़ा सुकून मिलेगा। हमने कहा क्या? बोले हमारे यहाँ देवदार की लकड़ी होती है। देवदार इज ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ वुड which is even better than the teak wood. तो वो हमारे कश्मीर से पहले हमारा हक था उस पे लकड़ी पे, अब तो सरकार दिल्ली की है, तो दिल्ली से बाहर यहाँ से बाहर चली जाती है। The income of that wood should go to the people of Kashmir. ये उसने बात कही, जम्मू एंड कश्मीर। बड़ी जेन्युइन बात कही। दूसरी बात बोला कि
The flow of rivers, water in rivers in Kashmir is very fast, and you can produce electricity. बनती भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उस पानी से. तो हमारे यहाँ की जो बिजली है वो हमारे यहाँ के लोग को मिले, बाद में कहीं और जाए. तीसरी बात उसने कही कि we depend significantly on tourism. When our taxis go from Jammu or from Kashmir to Delhi or Chandigarh or any other city, those taxis are not allowed to run in the city. वो किनारे पे रोक देते सरहद पे, वहां से आप लोकल टैक्सी करो जो बहुत महंगी पड़ती है. तो हमारे यहाँ के लोगों को जो यहाँ से टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं काम धंधे के लिए शहरों में, उनके लिए बड़ी दुश्वारी हो जाती है. तो ये करा दीजिए कि हमारी टैक्सी चल सके, क्योंकि तो दिल्ली से टैक्सी कश्मीर आती है, दे आर फ्री टू गो एनीवेयर. तो ऐसी एक बात और मैं भूल गया, 4 बातें उसने रखी. देन आई रियलाइज कि कश्मीर का मसला क्या है. बिकॉज इफ यू टेक अवे द स्टेटस ऑफ ए स्टेट एज ए स्टेट, तो उसकी क्या दुश्वारी होती है. कुछ देर में हमारी टैक्सी पहुंच गई अनंतनाग. देवर मेनी टैक्सी ड्राइवर्स ओवर देयर. तो मैंने बातचीत की, हमने कहा कि वहाँ एक हमारे मतलब टेलीफोन पे राखी ने किसी से संपर्क जोड़ दिया था, इफ्तिखार मिस्कर, एक बहुत अच्छे आदमी है, एक इंडस्ट्री चलाते हैं वो. तो उन्होंने कहा था कि अगर आप यहाँ आएंगे तो हम आपके लोगों से मुलाकात कराएंगे. उन्होंने अपने घर पे बुला भी लिया था 10-12 लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट है उस इलाके के. उनसे मेरी बातचीत बाद में हुई. तो मैंने फोन किया कि मैं आ गया, आप कहाँ मिलेंगे. तो उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाए, मैं 20 मिनट में आता हूँ. तब तक 20 मिनट मैंने टैक्सी वालों से बातचीत की. मैंने कहा आप लोगों का लॉकडाउन का कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा. बोले लॉकडाउन तो छोड़ो, हम तो भूख मर गए, लेकिन आज से 8 महीने पहले हमारी टैक्सीज को कमिश्नर ने हायर किया था इन द इलेक्शंस फॉर बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, एंड डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल. 1000 रुपए रोज पे फॉर 40 days एंड वी हैव नॉट बीन पेड. तो हमारा अब उन पे बकाया है 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज ईच. वो पैसा दिला दीजिए. मैं हक्का बक्का रह गया. मैंने कहा किससे बात करूं. फिर उनका वो अपनी उनकी यूनियन थी, उनके यहाँ ले गए. ऑफिस बीरर से भी बातचीत की. उन्होंने कहा सब हमारी यही मसला है. अगले दिन आई वेंट टू फारूक अब्दुल्ला, श्रीनगर आया, उनके घर चला गया. फारूक अब्दुल्ला ने मुझे वक्त दिया. तो उनसे मैंने करीब 40 मिनट बात की. मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ये करवा दीजिए, लोग बड़े परेशान. उन्होंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन सुनता कौन. हमारे सब कार्यकर्ता तो जेल में. फिर मैं चला गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के, लेफ्टिनेंट का गवर्नर के घर गया. तो उनके घर के बाहर एक सर्कल था सिक्योरिटी का, उसके बाहर दूसरा सर्कल सिक्योरिटी का था, तीसरा था. मैं तीसरे पे रुक गया, उन्हें नहीं जाने दिया. हमने कहा कि मुझे तो मिलना है भाई, एक मेमोरेंडम देना है इनको गवर्नर को. तो सिक्योरिटी वाले ने अंदर फोन किया, वहां से बताया कि भाई गवर्नर इज नॉट अवेलेबल. तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू टॉक टू हिज सेक्रेटरी. उन्होंने कहा ही इज आल्सो नॉट अवेलेबल. मैंने कहा देन आई वुड लाइक टू टॉक टू असिस्टेंट ऑफ द सेक्रेटरी. उन्होंने कहा ही इज आल्सो नॉट अवेलेबल, ही कैन नॉट टॉक टू यू. गिव द योर एप्लीकेशन टू द सिक्योरिटी गार्ड. दे आया, कुछ नहीं, आज तक कोई खबर नहीं आई वहां से. माय पॉइंट इज दैट इफ यू टेक अवे द स्टेटस ऑफ a state, then there is no channel for common men to express their grievances. Send them to the top. कौन पहुंचाएगा? मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, प्रधानमंत्री के पास कौन पहुंचाएगा? दिल्ली आएगा कौन? इसलिए वो एक सीरियस आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम है कश्मीर का. कश्मीर इज अवर्स, कश्मीरी पीपल आर आल्सो अवर्स, एंड वी मस्ट लुक एट देयर प्रॉब्लम्स एज ग्रीवेंसेस. जैसा अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा, सादी ने कहा है कि दूसरों की तकलीफ को अपना समझ के देखो. तो वो एक बहुत बड़ी खामी रही. हमने कैंपेन चलाया था, राखी थोड़ी शायद उस पर बात करेगी दिल्ली में इस सवाल पे. और जुनून जो मुल्क में पैदा हुआ, कश्मीरी अवाम में तो जो मुसीबत गुजरी सो अलग. इसका चौगुना नुकसान यह हुआ कि हिंदुस्तान में जुनून पैदा हुआ. आई थिंक दिस इज ए वेरी सीरियस थिंग. नॉन वायलेंस इज रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट दैट, to counter that arrogance, that fanaticism. तो एक बात भी है. एक मुद्दा फिर खड़ा हुआ, मंदिर का आ गया बीच में सवाल. I am narrating these issues which are outstanding, and some efforts have been made. I will also, so we have made some successes also. But let me narrate 4-5 problems. One was the
fanaticism aroused or passions aroused in February, I think it was in February, in this terrorist attack on Pulwama, in Pulwama. Second was the Kashmir. Third one was the Ram Temple. India is a religious country. Everybody has a right to go to mosque or church or gurudwara or temple for prayer. प्रेयर के लिए जाना तो हर एक का हक है। घमंड जताने के लिए कि मेरा धर्म तेरे धर्म से बड़ा, ये किसी का हक नहीं। लेकिन करीब 3 बरस 1989 से लेकर 1992 तक मुल्क में एक नफरत का आंदोलन खड़ा किया गया। खैर अब वो तो पुरानी बात पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट का फाइनली फैसला आ गया कि साहब वहां तो मंदिर बने। Many people questioned the truthfulness of this decision, लेकिन चलो भाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब उसकी तहमीत में नहीं जाना। हालांकि I never agreed with that, and it was not the issue of Babri Mosque. बाबरी मॉस्क की आड़ में हिंदुस्तान के हर आदमी को तो आपने जलील किया, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस को मिट्टी में मिलाया, डेमोक्रेसी खत्म की, एक ऐसा रिजीम मुल्क पे हावी कर दिया जिसमें बोलना दूर है। ये सब कॉन्सिक्वेंस मिला के राम टेम्पल मूवमेंट के हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट को दिखा दिया। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आ गया तो 5 अगस्त की तारीख रखी हमारे प्रधानमंत्री ने कि साहब उस दिन वो उसकी नींव रखे, मंदिर बने। मैंने 10 दिन का कैंपेन चलाया दिल्ली में, पर्चे बांटने निकला। शुरू में तो ऐसा 4-5 लोग थे, बाद में फिर मैं कई जगह अकेला गया, एक आध जगह बड़ी बेटी राखी गई और कुछ 2-4 साथी कभी कभार जमा हुए। लेकिन एक फर्क देखा, 1992 में बाबरी मस्जिद जब गिराई गई तो दिल्ली के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा। तो मैंने एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की 6 लड़कियां आई कि हम आपके साथ कर्फ्यू वाले इलाकों में चलना चाहते हैं, तो मैं उनको लेके अजमेरी गेट वाले इलाके में गया। अजमेरी गेट का इलाका मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मुसलमानों के हिंदुओं की। ज्यादातर जो दुकानें हैं उसके मालिक तो हिंदू है, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानें हैं उसके मुसलमान है, और कारीगर और मजदूर तबके में मुसलमान ज्यादा है, तो मिक्स्ड पॉपुलेशन। तो जब मैं उधर गया था तो उस वक्त लोगों में ज्यादा जुनून था। अब जब मैं 5 अगस्त को, जिस दिन मोदी अयोध्या पहुंचे अपना नींव का पत्थर रखने के लिए राम टेम्पल का, तो मैं पर्चा बांट रहा था। तो मैंने एक बात रखी थी पर्चे में, मैंने कहा मंदिर तो वही जमता है, मस्जिद वही जमती है जहां पे इंसान जाए तो उसका घमंड कम हो जाए। और वाल्मीकि का एक दोहा है, उसमें एक चौपाई है रामायण में, उसमें उन्होंने कहा राम जब जंगल गए तो राम ने ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि भाई मैं 14 साल के लिए जंगल आया हूँ, मेरे साथ मेरी बीवी है और मेरा भाई, कोई जगह बता दो जहां मैं अपनी झोपड़ी डाल दूं रहूं। तो वाल्मीकि कहते हैं कि आप तो भगवान हो, अल्लाह ताला हो, आप कहाँ नहीं हो, लेकिन फिर भी आपसे मुझसे पूछा तो मैं बताता हूँ। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिसके अंदर कपट नहीं है, जिसके अंदर घमंड नहीं है, और जिसके अंदर माया माने अपने और गैर का फर्क नहीं, उसके दिल में रहो। तो हमने कहा कि मंदिर जो यहाँ पे जो मस्जिद था, मंदिर था, वो तो हिस्टोरिकली ऐसा स्थान था जहाँ हिंदू की पूजा करते थे, चबूतरे पे, राम चबूतरे पे। वो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, ना केवल हम मुसलमान तो पढ़ते ही थे, हम हिंदू भी पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। साथ में जो शहीद हुए 1857 में, तमाम मौलवी मर गए, फांसी लटक गए, तमाम हिंदू मर गए, मिलके लड़े, मिलके मरे। लगभग 1 लाख लोग मरा था अवध के पूरे क्षेत्र में, लखनऊ से लेकर अवध तक, उस 1857 की लड़ाई में। वो उनका मरकज है, तो कम से कम दोनों को ऐसा तो बनाओ ताकि दोनों जाके अभी भी वहां पे मत्था टेक सके। और हिंदुओं में भी कई लोग वाल्मीकि की पूजा करते हैं, कई लोग रविदास की करते हैं, तो वो भी जाके कर सके। ईसाई है तो वो भी जाके कर सके। मुल्क का ऐसा निजाम तो बनाओ ताकि जो नफरत का आंदोलन चला है, इसको बनाने के उसके पीछे कम से कम उसका कुछ तो पाप धुले। ये मैंने बात लोगों से रखी, और
पूरे अजमेर गेट के इलाके में, जहां पे कि 1992 में बड़ा मुझे दिक्कत पड़ी बात करने में लोगों को, इस वक्त लोगों ने मेरी बात को समझा और वो हमारा 10 दिन कैंपेन चला। उस 10 दिन के कैंपेन में लोगों ने इस बात को रियलाइज किया कि ये जो मंदिर बनेगा वो मंदिर इंसानियत का मंदिर नहीं हो सकता। कई लोगों ने महसूस किया इस बात को, लेकिन नॉन वायलेंस का तकाजा था कि गांव-गांव से ऐसी आवाज उठती, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-10 लोग अपने घर में, गांव में जाके किसी मंदिर के सामने या किसी चौराहे पे बैठ के उससे उपवास करते या कोई कीर्तनी कर लेते, एक रेजोल्यूशन पास कर लेते हो, उसकी कॉपी भेज देते वहां के थानेदार या कलेक्टर। लेकिन उस मैग्नीट्यूड का हम मोबिलाइजेशन नहीं कर सके, ये मेरी खामी रही और मेरे जैसे तमाम संगठनों की खामी रही, तो नॉन वायलेंस फेल्ड देयर एज वेल। तीसरा केस आया सीए के सवाल, आप लोगों को पता होगा, लेकिन ब्रीफली लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इट वाज on paper meant for the people who came to India from 3 countries, Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, without legal visa. So who are here as illegal aliens, उनके बारे में कानून आया। कानून ये आया that we will make 2 categories of the people who came from outside without visa or who are living here without visa, proper visa. One category will be Muslims and second category will be all others, Hindus, Sikhs, Christians, Parsis, etc. The second category people will be treated as refugees of religious persecution, and they will be given the status of refugees for 6 years, and after the completion of that 6-year period, they will be given the status of citizenship. They will be given citizenship. Whereas the category, Muslim category, those people will be treated as infiltrators, and they will be either sent to jail or sent back to their native country. ये बात इस मामले में गलत थी, इसका मुझे बहुत तकलीफ हुई जब ये फैसला आया, तो सरकार ने कानून बनाया कि हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में से जो लोग इंडिया आते हैं या हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं, वो परसिक्यूशन की वजह से तो उसमें 2-4%, 95% पीपल गो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। हमारे यहाँ के भी करीब 3.5 करोड़ लोग दुनिया के मुल्कों में है, अमेरिका में भी है, मिडिल ईस्ट में है, साउथ अफ्रीका में है, मलेशिया, तमाम मुल्कों करीब 3.5 करोड़ आबादी, 3 करोड़ की करीब आबादी है। तो करीब 3% और 2% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स अब्रॉड, 2.5%, और largely not because of persecution in India, largely because of economic reasons for education and so on. तो उसी तरीके से जो बाहर से तो हमारे यहाँ मजदूर आते हैं, उन मजदूरों के आप खांचे क्यों कर सकते हो? कोई भी धरती पर पैदा हुआ आदमी सिर्फ इसलिए मुसलमान कहलाता है कि मुसलमान घर में पैदा हो गया, या इसलिए हिंदू कहलाता है कि हिंदू घर में पैदा हो गया, वरना मुकम्मल इंसान। आप मजदूर के खांचे मत करो, ये तो उसकी दीगर पहचान है, ऊपरी चीज है। असली चीज है कि वो मुकम्मल इंसान है। और राइट टू लाइवलीहुड भी कदर करो उसकी। मुल्क के जितने रिसोर्सेज हैं उन पे सारा का सारा कब्जा तो मुट्ठी भर 1% लोगों ने कर रखा है। कि जो बाहर से मजदूर आते हैं वो तो किसी पे कब्जा करते भी नहीं, अपनी मेहनत बेचते हैं और जितना कमाते हैं उसका आधा हिस्सा सरकार को या व्यापारी को चुका देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप उसको इस तरीके से जलील मत करो। तो ये बात हमारी थी, लेकिन इसका ये तो हुआ 5% बुरा पहलू। 90% खराब पहलू ये था, उन्होंने कहा साथ में एनआरसी भी आएगा। पार्लियामेंट में कहा था हमारे होम मिनिस्टर ने, और तमाम स्टेजेस पे हल्ला मचाते रहे एनआरसी आएगा पूरे मुल्क में। एनआरसी मींस नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस आएगा, बनेगा सिटीजनशिप। यू हैव टू प्रूव, एवरीबॉडी हैज टू प्रूव दैट ही और शी इज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, गिविंग हार्ड प्रूफ्स। उसने हार्ड प्रूफ्स में 10 प्रूफ में से कोई 2-3 प्रूफ चाहिए थे। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट। Majority of the people in India are born at home. They don't have a birth certificate from a hospital, जो की जरूरत थी। Majority of the people don't go to high school, तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए था, and so on. तो वो तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन लोगों को बहकाया गया कि अरे भाई अगर तुम्हारे पास कागज नहीं भी है, if you are not a Muslim, don't worry, you will be treated as refugee for a few years, but then you will be given citizenship. लेकिन मुसलमानों के लिए कोई रास्ते ही नहीं। तो इतना बिल्कुल आपने कॉर्नर कर दिया एक कम्युनिटी को। वो कम्युनिटी कौन?
मुसलमानों के बारे में भी मैं चाहता हूं कि हम सब लोग आंखें भी खोल लें। हिंदुस्तान का जो आज बाशिंदा मुसलमान है, अडवाणी ने भी एक लेक्चर में कहा था कि 95% हिंदुस्तान के ही बाशिंदे, सदियों से, हजारों बरस से रह रहे हैं इसको, और करते क्या है, चाहे वो राजा पृथ्वीराज रहा हो, चाहे वो अकबर रहा हो, चाहे वो अंग्रेज रहा हो, मजदूरी करते हैं, कारीगरी करते हैं, हुनर का काम करते हैं। ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट भी हमारे मुल्क में हर कम्युनिटी में से आए, वो मुसलमानों से ज्यादा ही आए। तो ये हमारे मुल्क का मुसलमान जो ईमान की रोटी खाता है, मुल्क को बनाता है, और उसके बारे में आप ये इस प्रकार का कि आप प्रूव करो कि आप यहाँ के हो। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री से भी कोई पूछ ले कि आप साबित करो कि आप हिंदुस्तान को मोहब्बत करते हो, हिंदुस्तान की खिदमत करते हो, वो फेल हो जाएंगे उसमें। आप एक अदना मजदूर से पूछते हो ये सवाल, जिसकी जिंदगी इस बात की गवाह है, इसका प्रूफ है कि वो असली हिंदुस्तानी है। मैं इंसान की 3 पहचान रखता हूं। पहली पहचान के आदमी के दिल में जो बात है जुबान से बोले, यानी सच्चा हो। दूसरी बात कि आंख खोल के दूसरों की दुख तकलीफ देख सके। पढ़े लिखे लोगों ने 95% लोगों ने आंखों में पर्दा डाल रखा है, दिखता नहीं। दे आर ब्लाइंड एंड दे आर एंजॉयिंग देयर ब्लाइंडनेस। जिस आदमी को दूसरे की सच्चाई और दुख तकलीफ का एहसास ना हो तो इंसान हुआ नहीं। लेकिन हमारे मुल्क में और जो हमारे एनआरआई दुनिया में बसे हैं, आंखों में पर्दा पड़ गया है। चुनौती हमारे सामने ये है कि हाउ टू रिमूव दैट कर्टेन ऑफ प्रेजुडिस फ्रॉम द आईज ऑफ आवर कंट्रीमैन। असली चुनौती तो ये है। लेकिन सरकार ने कानून बना दिया, तो उसके विरोध में हमारे मुल्क की लड़कियां खड़ी हुई। पहले तो जेएनयू के कुछ बच्चे, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, कुछ जामिया के, कुछ अलीगढ़ के, और तमाम जगहों पे इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने भी किया। आई थिंक इंदिरा गांधी के जमाने के बाद सबसे बड़ी रैली दिल्ली में मैंने देखी, और उसमें हमने 4000 पर्चे भी बांटे थे, वो इसी सवाल पर। इट वाज, ये बात का सबूत था कि हिंदुस्तान अभी जिंदा है पॉलिटिकली। फिर कुछ दिनों के बाद जयपुर में हुई, 5 लाख लोग उसमें थे, दिल्ली में 10 लाख थे। इस तरीके से उसका विरोध हुआ, लेकिन बाद में वो ठंडा पड़ गया। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सीखना है कि कोई कैंपेन आप चालू करो तो उसको फिर सस्टेन कैसे करना है, अभी उसमें खामी है। तो दैट इज, लेकिन आई कंसीडर द पार्ट ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कैंपसेस में घुस के पुलिस ने मारा, एक कमी और रह गई। जैसे जामिया मिलिया के बच्चों ने जब डेमोन्स्ट्रेशन निकाला, मैं शरीक हुआ उसमें। अब बीच में पुलिस ने जाके बैरिकेड लगा दिया। इनका प्लान था कि दे विल मार्च फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया व्हिच इज इन साउथ दिल्ली टू पार्लियामेंट। पीसफुली जाएंगे, बहुत पीसफुल थे सब। लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया अबाउट हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम जामिया। आगे नहीं जाने दे रहे थे, तो बच्चों को कुछ तैश आ गया, तो कुछ बच्चों ने कोई फटे जूते सड़क पे पड़े वो फेंक दिए, तो पथराव कर दिए। उस लड़की की तरफ से पथराव आ गया, पुलिस की तरफ से। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन मैं काबू नहीं कर सका। आई थिंक जब भी हम कोई इस प्रकार का प्रोसेशन निकाले, वी शुड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन। के जिस तरीके से मैंने बताया था कि धारासना सत्याग्रह में अगर आप लाठी भी पड़ रही सर पे, तो आपके लिए अपने हाथ नहीं उठाने बचाने के लिए। एंड आई थिंक ऑल डेमोन्स्ट्रेशंस, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस, बट एंश्योर कि अपनी तरफ से हम पत्थर नहीं जाएगा। लेकिन वो वहां जामिया में हुआ, लेकिन कोई बड़े पत्थर नहीं, कोई जूता उता फेंक के तो किसी को नहीं लगी, लेकिन ऐसा हुआ। और उसका बहाना बना के अगले दिन पुलिस उसके कैंपस के अंदर मारा, लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा, लाइब्रेरी को तबाह कर दिया। लेकिन फिर शाहीन बाग की लेडीज खड़ी हो और 100 दिन का धरना चला। दिल्ली में 24 धरने चले, पूरे मुल्क में 200 धरने चले। हर धरने में लगभग 1000 औरतें बारी बारी से आके बैठती थी। तो मैं मानता हूं कि पूरे मुल्क में कम से कम 1 लाख नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट महिलाएं जिंदा हो गई, खड़ी हो गई, अभी भी है। और उनके सपोर्ट में बाकी कम्युनिटीज से भी, सिखों और हिंदुओं से में से भी बड़ी तादाद में लड़कियां आई। शाम को हाजिरी लगाने पहुंचती थी वहां पे, उनको हौसला बढ़ाने के लिए। शाहीन बाग में अलग अलग जगहों पे मैंने देखा, कई जगह तो जैसे हम लोगों ने जुलूस निकाला। एक लड़की थी अनुमया यादव, तो उसने कहा कि आरएसएस का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है हौज खास, दिल्ली की एक बस्ती है कुतुब मीनार के पास, हौज खास। तो उसने कहा हम जुलूस निकालेंगे। उसने परमिशन वगैरह ले ली पुलिस वगैरह से, और 200-250 लोग हमने जमा कर लिए। फिर हम लोगों ने जुलूस भी निकाला।
इस तरीके से कई बस्तियों में निकली, कैलाश में एक और ग्रुप था उसने निकाला। तो आई थिंक दैट वाज ए ग्रेट नॉन वायलेंट मूवमेंट इन द कंट्री। और उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि उस दिन दिल्ली का चुनाव हुआ, उस चुनाव में केजरीवाल की जीत के पीछे बहुत बड़ा कारण इस आंदोलन का भी था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो देख गया शाम को, तो लड़कियों ने अपने मुंह पे पट्टी बांध रखी। तो मैंने कहा कि आज कोई सभा वगैरह नहीं होगी क्या? मैंने कहा क्या, क्यों? तो उन्होंने कागज पे लिख के दिया कि आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है, कहीं हमसे बदजुबानी ना हो जाए, कहीं खुशी का इजहार ना हो जाए एक्साइटमेंट में, सो वी आर कीपिंग क्वाइट। और गांधी जी की बस फोटो लगा रखी थी और रात के 12 बजे तक खामोश बैठी रही। तो ये चीज मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा, और मोदी को कहना पड़ा कि हमने भाई एनआरसी की कब बात की, क्योंकि एनआरसी को जब खत्म करो सीएए से तो इट लुक वेरी डिवास्टेटिंग, वेरी टेरेबल लॉ, तो उनको कहना पड़ा और फिर वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सके पूरे मुल्क में एनआरसी। सो आई थिंक यू डोंट टेक कि भाई दिस मूवमेंट फेल्ड, दिस मूवमेंट हैज अचीव्ड ए ग्रेट माइलस्टोन। इट फोर्स्ड द स्टेट, द गवर्नमेंट टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट कंट्री वाइड एनआरसी। चुनाव में तो हल्ला मचाते हैं, बंगाल के चुनाव में मचाया था हल्ला कि हम एनआरसी लाएंगे, लेकिन वो लोकल लीडर्स और ये भी जाते हैं प्रधान में, ये होम मिनिस्टर वगैरह, लेकिन एज ए लॉ एनआरसी को लॉ नहीं ला सकते, कंट्री वाइड एनआरसी का। सो आई थिंक दैट वाज ए ग्रेट सक्सेस। अब वो कोरोना की वजह से फेल हो गया। एक जो चीज जरूर उसमें खामी रही कि जब सरकार को कोई रास्ता नहीं नजर आया तो दंगाइयों को भेज दी। वहां पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक इलाका है जाफराबाद, जाफराबाद के नीचे लड़कियां खड़ी थी, मतलब उसने 23 फरवरी की तारीख थी, 22 से 23 फरवरी की, उसके 3 दिन पहले से जमावड़ा उनका बिल्कुल टेररिस्ट लोगों का जमा हो गया। धमकाने लगे कि पुलिस इनको हटाओ वरना हम देख लेंगे, इस तरीके की धमकी आने लगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे लोग वहां पे गए, मैं उस दिन नहीं गया। मैं तो उस दिन गया जब दंगा पता लगा कि कल से लड़ाई चालू हो गई है, तो मैं पहुंच गया उधर। अब देन आई ट्राई टू इंटरवीन, मैं कुछ कर नहीं सका उसमें, वो हमारी खामी रही। I think these are certain weaknesses in our campaign, our movement, non-violent struggle. We should be assessing the situation, what is going to happen in next phase, and we should be ready ourselves for that. तो उसकी एक कमी है हमारे अंदर, वो हमें सीखने की जरूरत है। तो एक आंदोलन ये होगा। आखिरी आंदोलन का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, फार्मर्स मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट, शाहीन बाग का आंदोलन चला 100 दिन, और मैं दिल्ली के 4-5 आंदोलन में शरीक हुआ, धरनों में जाया करता था, और एक रांची गया था एक रोज, वहां के लोगों में बहुत नॉन वायलेंट था, वो पीसफुल, तो वहां पे भी बड़ा हौसला था। फिर किसान आंदोलन 1 साल चला, 1 साल से 2-4 दिन ज्यादा ही चला। सरकार को कानून वापस लेना पड़ा, टोटली नॉन वायलेंट था। तस्वीर तुमने गुरु गोविंद सिंह की लगा रखी थी, भगत सिंह की लगा रखी थी, गांधी की तुमने की देखी नहीं, लेकिन इट वाज टोटली ऑन गांधीयन लाइन्स। जब मैं बात करता था किसानों से तो बिल्कुल उनके अंदर से गांधी ही बोलता था। बात तो भगत सिंह और उसकी करते थे वो, लेकिन they were totally non-violent. They were transparent. What was there in their hearts, it was on their tongue. और कोई कपट नहीं था और कोई खौफ नहीं। ये 2-3 चीजें मैं मानता हूँ कि जिन लोगों में सच्चाई हो, ईमान की रोटी खाते हो, और जो दिल की बात जुबान से बोलते हो, वही सत्याग्रही होता है, वो हर इंसान सत्याग्रही। तो खैर ये बातें तो मैंने हुकूमत के सवाल पर रखी। अब इसमें अभी किसानों का मसला आधा पूरा हुआ है। एक चीज जिसमें और खड़ी हुई, जब शाहीन बाग चल रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स, about 30% teachers in Delhi University are on ad hoc basis or on temporary posts for several years, several decades. So they have been demanding that they should be regularized, but they have not been. तो 60 दिन उनकी हड़ताल चली। मेरे दिमाग में ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का जो रात दिन का धरना है, यहाँ से कुछ लोग जाएं शाहीन बाग, उनको अपना सपोर्ट जाहिर करें, और कुछ लोग शाहीन बाग से आके इनमें अपना सपोर्ट जाहिर करें। कुछ लोग आए भी, लेकिन द नंबर शुड हैव बीन मच बिगर। यहाँ से 10-15 टीचर गए, वहां से 10-15 लोग आए, इट वाज नॉट सफिशिएंट। अगर 200 लोग वहां से आते शाहीन बाग से इधर, और टीचर्स में भी 100-200 वहां जाते, तो बात ज्यादा अच्छी होती। लेकिन उसको करने की जरूरत है, कोई कमी रहेगी, लेकिन वो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
2 साल के लॉकडाउन ने एक नया ग्राउंड तैयार कर दिया है। आई थिंक द एंटायर यूथ एंड टीचिंग फैकल्टी इज वेरी सीरियसली एजुकेटेड। दे वांट टू बिल्ड ए मूवमेंट ऑन द पैटर्न ऑफ शाहीन बाग और फार्मर्स मूवमेंट। वो तैयारी है, बस इतनी की जरूरत है कि इन सारे मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखना है और इनमें कोऑर्डिनेशन भी आना चाहिए, उसकी कमी रही। तो अभी मैं मानता हूँ कि किसान आंदोलन में सरकार ने 3 कानून जो प्रो कॉर्पोरेट कानून थे वो तो वापस ले लिए। उस मौके की एक अच्छी बात में अपना जो सद्भाव मिशन का एक रोल रहा वो ये कि मैं जाया करता था वहाँ पे, हर हफ्ते में एक बार तो जाती था, सिंघू बॉर्डर और बाकी बॉर्डर्स पे भी जाते ही था, कि किसानों ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं होती। ये वो पंजाब है जहाँ 1947 में सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ। एक आंकड़ा आपको शायद ना बताओ तो मैं बता देता हूँ 1947 का। पेंडरल मून एक बहुत बड़े अंग्रेजी अफसर थे और उनकी ऑब्जेक्टिविटी को लोग कदर करते थे। उन्होंने लिखा कि इंडियन पंजाब में मरने वालों की तादाद पार्टीशन के दौरान 1,20,000 120,000, यानी जो ज्यादातर मरने वाले मुसलमान थे। और पाकिस्तानी पंजाब में मरने वालों की तादाद 60,000, जो ज्यादातर हिंदू और सिख थे। Means Muslim casualties were at least twice the casualties of Hindus and Sikhs combined. उसी पंजाब के लोगों ने जब दिल्ली में धरना दिया सिंघू बॉर्डर पे, तो सबसे बड़ा जो लंगर चला कई महीने वो चला मलारकोटला एक जगह है पंजाब में। पूरे पंजाब में जब वायलेंस हुई तो मलारकोटला में वायलेंस नहीं हुई थी, क्योंकि वहां के नवाब की लोग बड़ी इज्जत करते थे। तो वहां का सबसे बड़ा लंगर था, उसमें सबसे ज्यादा हिंदू और सिख खाने वाले उसी लंगर पे जाते थे। और पूरे सिखों ने कहा कि कितनी भी बातें हमें औरंगजेब की सिखाएं, कितनी भी बातें 1947 की सिखाएं, we will not let us be divided, we are together, and they stood by their conviction। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात एक और कि हरियाणा के लोग भी शरीक हुए इसमें। हरियाणा में एक गांव है खेड़ा खलीलपुर। खेड़ा खलीलपुर में एक लड़के का मर्डर हो गया। वो मुस्लिम लड़का था, नाम था यूसुफ, 29 ईयर ओल्ड था, अच्छा खासा, अच्छा लंबा कद का था और अपने एक जिम चलाता था। उसका मर्डर हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद उसी गांव के कुछ लोगों ने किया, गुजर कुछ क्रिमिनल थे, उन लोगों ने कर दिया। इट वाज नॉट ए वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज, इट वाज ए उसको किडनैप किया, मारा, लेकिन के केस माना गया। फिर कुछ दिनों के बाद, 14 दिन के बाद, बगल के गांव में इंद्री में एक फेनेटिक लोगों की सभा हुई। 5,000 लोग जमा हुए उसमें। मैं उस गांव चला गया, मुझे खबर नहीं कि सभा हुई। तो मैंने सरपंच से बातचीत की। सरपंच बोले साहब मैंने सभा नहीं की थी, वो तो कुछ और लोगों ने कहा था कि तुम ऑर्गेनाइज कर दो, तो हमने कर दी, लेकिन हमारा इनिशिएटिव नहीं था। तो क्या हुआ उसमें हल्ला ये मचा के साहब वो लड़का जो था वो तो बड़ा कैरेक्टरलेस था, वैसे क्रिमिनल। मैंने कहा मैं पूरे गांव में घूम के आया, खेड़ा खलीलपुर में जाटों से मिला, वहां के दलितों से मिला, मुसलमानों से मिला और कुछ गुजरों से भी मिला। किसी ने तो नहीं बताया कि वो आदमी का कैरेक्टर खराब था, सब कहते लड़का अच्छा था। आप कैसे कह रहे हो? अरे बोले साहब ऐसे ही था। और ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि ताकि पूरे मेवात, हरियाणा का मेवात जिला, उसको पोलराइज कर सके। मुझे बड़ी फिक्र लग गई तो मैं चला गया। किसान आंदोलन पलवल में धरना चल रहा था उनके पास, वहां ज्यादातर जाट किसान बैठे थे, 2-4 मुसलमान भी। हमने कहा देखिए ये घटना घटी है, बोले हमें पता है और हम ये चीज आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये जो पोलराइजेशन उन्होंने इंद्री में किया उसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो किसान आंदोलन का ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को उसने रोका, कई जगहों पे रोका। इलेक्शन में भी 19 अभी जो यूपी असेंबली का इलेक्शन था उसमें भी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होने नहीं दिया। अब ये जीत गए, सरकार कैसे फिर से बन गई इनकी एक मिस्ट्री है। अब उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि डिसऑर्डर होने की जरूरत नहीं। हम लोगों को सबक सीखने हैं इस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से, किसानों से, शाहीन बाग की बेटियों से और कश्मीर के लोगों से, और उनको हिम्मत देनी है, जितना हमसे बन सके उसको आगे बढ़ाना है। ये बात तो हुई हुकूमत के खिलाफ आंदोलन, लेकिन जो मेरा टाइम खत्म हो गया बात ठीक है। ठीक है, 5 मिनट।
तो दूसरा मसला ये कि जमीन पर जो हिंसा हो रही है उसका हम क्या करें। मेरे ख्याल से मेरा 1 घंटा लगभग हो गया है, 3:40 होने को है। आई विल फिनिश इन 5 मिनट्स। जमीन पे 3-4 किस्म की घटनाएं घट रही हैं। हम लोगों को हर घटना पे रिएक्ट करने की जरूरत है। खुद हिंदुस्तान के लोग, अवाम, अपनी हिम्मत उनमें मालिक ने दी है, लड़ेंगे झगड़ेंगे। हमें की इशूज पकड़ना। जो सबसे की इशू उभर के आया है वो है लिंचिंग। लिंचिंग से भी बड़ा खतरनाक है ये जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब पिछले 2-4 महीनों में जो बड़ी बड़ी हिंसा की घटनाएं घटी, जिससे खौफ पैदा हुआ समाज में, वो सबसे खतरनाक चीज निकल के आई वो है जेनोसाइड। एंड आई थिंक वी शुड टेक इट अप। और हमारे लिए हिंदुस्तान में रिलीजियसनेस की जरूरत है। कोई मजहब गायों के लिए नहीं आया, सुअर के लिए नहीं आया, बच्चियों के लिए नहीं। इंसान के लिए सारे मजहब आए, इंसान को इंसान बनाने कि गाय की पूजा करो, आदमी को मार दो। ये पागलपन की इंतहा है। मुझे कहना पड़ता है लोगों से कि गाय में वो कहते हैं कि 36 करोड़ देवता निवास करते हैं। गाय में तो सब खुद भगवान रहते हैं, अल्लाह ताला रहते हैं, इंसान में। तो आप गाय की पूजा कर लो, अपने घर में बांध के जो करना चाहे खिलाओ पिलाओ, उसका जो भी करना चाहे करो, लेकिन भाई इंसान को तो बख्शो। कोई आपसे खैरात मांगने नहीं आ रहा। आदमी मेहनत करता है तो खाता है। धरती की तारीख, इंसान की तारीख 2 लाख साल से ज्यादा पुरानी। 2 लाख साल पहले धरती की जो सूरत थी, जो प्रोडक्टिविटी थी, पानी का अमाउंट था, वो सारा का सारा जो करते हो। अभी 200 साल में जब से इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन चालू हुई है, तब से जरूर लगने लगा, खौफ पैदा होने लगा कि कहीं हमारा पर्यावरण खराब ना हो जाए, कहीं हमारा समंदर का ये पहाड़ों का पानी ना पिघलने लग जाए तो समंदर गली में डूब जाओ जाए। ये फिनोमेनन 200 साल पुरानी। अवाम की तारीख 2 लाख साल पुरानी। अवाम ने जिस मुल्क में हो रहे, उस मुल्क को ज्यों का त्यों बना के रखा। उसकी मिट्टी को, उसके जंगलों को, उसकी खानों को, उसके पानी को, उसकी आबो हवा को। आप तो हम नहीं लगा सकते किसी पर। ये बात कतई दीगर है कि साहब कौन कहां से आया। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग जो आजकल नॉर्थ इंडिया में रहते, ज्यादातर आर्यन कहलाते, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अब ये कहां से आए तो अल्लाह ताला जाने, लेकिन जो ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं कि भाई बाहर से आए, नहीं आए, मान लो आपको नहीं लगता बाहर से आए, कहीं से आए, ये बात कतई दीगर है। ये कि भाई जो यहाँ पे टाइम इमोरियल से आपको अपने दादा के दादा की जानकारी नहीं है, आप नहीं कह सकते विद ऑथेंटिसिटी के साहब हमारे दादा तो यहीं के थे और तुम्हारे दादा परदेश के थे। यू कैन नॉट डू इट। ये सारी की सारी चीजें वक्त में गुम हो गई। वी कैन नॉट क्लेम अवरसेल्फ टू बी नेटिव ऑफ इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अमेरिका। ये सारा का सारा 2-4 पीढ़ी तक तो चलता है, उसके पहले तो इतिहास ही किसी को पता नहीं। हम जलील ना करें इंसान को। तो धर्म के नाम पर इस वक्त हमारे लिए इस बात को फिर से कैंपेन की जरूरत है। और जितने भी रिलीजियस इदारे हैं, दे हैव लॉस्ट देयर सेंसेस। रिलीजन का जो मैंने वो चौपाई पढ़ी थी वाल्मीकि वाली, वही कुल मिला के पैगाम कुरान शरीफ का भी वही पैगाम हर मजहब का है। इंसान को सेंटर में रखो। अगर तो हमें उस पर कैंपेन करने की जरूरत है। और यहाँ के जो तमाम हिंदुस्तानी लोग हैं, अब चूंकि वोकल सबसे ज्यादा सेक्शन यहाँ का वो है जो कि हिंदुस्तान में लीचिंग को सपोर्ट करता है, कुरान शरीफ की आयतों को गालियां बकता है, पैगंबर मोहम्मद पर बहुत ही भद्दे हमले करता है। मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को। लेकिन इनकी तादाद अभी भी मुझे मालूम है कि इनके पीछे ना तो कोई रीजनिंग नहीं, ना इनके पीछे कोई सेंसिटिविटी है, दर्दमंदी जिसमें ना हो, जिसमें सच और गलत देखने का सलीका ना हो। उस इंसान की बात तो सिवा पागलपन को क्या हो सकती है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि 50% से ज्यादा हिंदुस्तानी अमेरिका में ऐसे जो इस बीमारी से बचे। भले ही कभी उनके डेमोन्स्ट्रेशन में शरीक हो जाते हो, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट एंड कॉन्सिक्वेंटली वी हैव टू विन देम ओवर। हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें नई पीढ़ी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं या और दूसरे कारोबारों में लगे हैं,
उनसे जोड़ने की कोशिश करें। तो हिंदुस्तान में तो मुझे जमीन पे काम करने का यही है कि जितने भी सेकुलर ग्रुप्स काम कर रहे हैं, बहुत हिंदुस्तान में सेकुलर ग्रुप्स काम करने वाले, दायरा सबका छोटा छोटा है, किसी का एक शहर तक महदूद है, किसी का एक जिले तक महदूद है, लेकिन आई थिंक वी आर डूइंग आवर बिट। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में और हौसला पैदा हो जाए तो उनके वर्कर्स गांव-गांव में, I think if we can create 2 or 3 workers per village, we will be able to handle the situation, control violence on streets or in villages. उसको रोकने की जरूरत है। फिलहाल तो मुझे यही बात करनी थी। अगर किसी के दिमाग में और कोई इशू हो तो उस पर फिर चर्चा बाद में कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद में आपसे सवाल जवाब होगा। वो जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम ही है कि मैं रोहित को इनवाइट करूंगा। इसके बाद 3-4 लोग जो है वो शॉर्ट कमेंट्स या जो भी इसी आइडिया को फर्दर एक्सपैंड, उसके बाद सवाल जवाब है। उसके बाद जो टाइम बचेगा आप लोगों को थोड़ी बहुत उसमें जाते आते हंसते खेलते जाने के लिए उसका भी इंतजाम, एंटरटेनमेंट। Thank you. The next part of the program is short speeches and comments by people of the diaspora. लेकिन शुरुआत करेंगे राखी से। My sister and who works with Papa very closely. She's a professor in India, but also a peace activist, and she has very specifically worked on the social media aspect of this. And since Papa has just finished his explanation India mein kya ho raha hai, I want to continue that thread of what is happening in India from her perspective, so that we kind of have a complete view of what's happening on the ground, which is offline, and then also online. This is my first time on this forum. Hello everybody, and बिल्कुल ही मुंह में ही है। सबसे पहली चीज जो I would like to tell you is I take care of social media. दुनिया बहुत अलग है ऑफलाइन और ऑनलाइन। जितने भी लोग इस वक्त अमेरिका में हैं या जहाँ तक ये रीच करेगा, let me first tell you, do not believe on WhatsApp messages, on social media stories, anything. जब तक कि उस आदमी ने पापा की तरह या किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करके कोई लाइव वीडियो ना दिया हो, आप उस पर भरोसा मत करिए। I am repeating, there are so many people that follow me on social media, but when we talk about ground reality, Papa is always alone, always alone. The online media does not come offline, but the offline वाले लोग हैं, they have very limited resources online. Number one. Number second, एक बहुत important चीज जो मैंने पिछले 2-3 सालों में सीखी है, वो ये है कि अगर हम किसी भी community को देखते हैं, we talk about a community, we talk about a low cost neighborhood, we talk about anything जो परेशान है, जो सताया जा रहा है, आप एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर एक community सताई जा रही है, तो वहां पे जो उसकी औरतें हैं, उनकी situation उससे भी ज्यादा है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो low cost neighborhood में नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस लो कॉस्ट नेबरहुड में जो औरतें होंगी, उनकी सिचुएशन वहां के पूरे माहौल से सबसे ज्यादा बेहतर होगी। And women are 50% of the population of the world. ये बात बिल्कुल नजरअंदाज है। अभी जो lately, why am I discussing women here is क्योंकि lately जब communal violence होती है, तो सबसे पहला कब्जा औरत पे किया। आप कोई भी चीज उठा के देखिए, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाहे उसका रेप हो, और जब वो किसी भी कम्युनल वायलेंस की वजह से उसके साथ बदतमीजी होती है, so the entire community is responsible. एक पर्टिकुलर आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इस बात को हमें बहुत जल्दी, ये बात बहुत जल्दी बहुत आसानी से नजरअंदाज होती है, चाहे वो उन्नाव का केस हो, चाहे वो हाथरस की लड़की हो, चाहे कोई भी चीज, वो आती है, बुरा हुआ, that's it. चाहे या तो इलेक्शन जीत लिया जाता है या कोई बात खत्म हो जाती है, that's it. But this is something where women right now, अभी हिजाब का केस हुआ, वैसे कहते हैं हिजाब हट जाना चाहिए, जब लड़की ने अपनी मर्जी से कहा हिजाब पहन के जाना चाहते हैं, हम तो पहनते आ रहे हैं, तब वो लोग करेगा नहीं तो सप्रेशन का, अरे सप्रेशन का पार्ट तब पहले आप उसको एजुकेशन के थ्रू डालिए कि सप्रेशन का पार्ट, आप उसको उसका हिजाब नहीं खींच सकते, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट।
Don't do that. This is what is happening in India. So there are two aspects. The first aspect was online is very different from offline. And the second was the women of any place. I mean, I'm not, why should I only talk about India? Any place where a community is being suppressed, when any low-cost neighborhood, rural India, कहीं भी अगर आप जाइए, आप जरूर सोचिए कि वहाँ की लड़कियों के बारे में क्या हो रहा है. And last is I want to talk about Papa's work. जो पिछले 2-3 साल में खैर वो he's been working for the past 40 years, लेकिन 35 years, 35 years. But the thing that I want to talk about Papa is जो hit हुआ, जो लोगों को catch किया, कि जब एक 70 साल का आदमी अकेले लड़ सकता है, भीड़ में जा सकता है और अपनी बात रख सकता है, तो कोई भी कर सकता है. In a very broad big strength given to so many people. The last thing I want to say is just raise your voice. आप बस खड़े होकर बोल दीजिए ये बात गलत है जो शाहीन बाग की लड़कियों ने कहा. उन्होंने कुछ नहीं किया, बुर्का पहने हुई थी, घर में काम करती है, लोगों के घर में काम करती है, जाके सड़क पर बैठी है और बोला हम एनआरसी नहीं मानेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे. That's it. आप कुछ भी करिएगा मानेंगे नहीं. ये बोलना ही हिम्मत है. That's the only thing I want to say. So do not please widespread करिए. Do not go for WhatsApp. Do not go for any social media. I am a person who's from social media. I am saying this until unless you have seen any ground reality. Thank you. That should hopefully give everybody a more complete view of what's happening on the ground in India. So, for the following speakers, I would request to keep your remarks to about 3 minutes. And the most natural place to start is with our most senior diaspora member, Professor Bhagat. Professor Bhagat is a retired professor of physics from the University of Maryland, where he taught for more than half a century. He's a guiding light for the Association of India's Development, AID, a group that a lot of you know, which works tirelessly on development in India. And scores of other activists committed to peace, justice, and development seek a lot of inspiration from Professor Bhagat. So it is a privilege to have him here. Vipin has certainly given you a very detailed account of one of the saddest things that is happening in India. My personal experience of India is very slight, because I have not lived in India for 65 years. However, I work with an organization which works with the poorest people in the country. We have about 150 projects from Kerala to Kashmir. Kashmir is always the hardest because the government interferes. But anyway, and what we have learned is that the vast majority of people in India are quite non-violent. Their struggle for life is so enormous, they don't have any time to hurt anyone. The system is hurting them morning, evening. Imagine a typical woman in the village. She gets up about 4:30, 5 o'clock in the morning, and often has to walk a kilometer and a half before she can bring some water for her tea. And then there are places in Jharkhand, Odisha, and Bihar, they have found that there is no nearest water. Afforestation has been enormous. Trees are gone. When the rain falls, for a few days or weeks, things are okay. But soon the water runs away. Last week, we had pictures from Odisha of women having to dig 15 feet into the ground before they could find any water at all for the drink. That is the story that I see quite. Not too long ago,
We had a Zoom call from the COVID widows of India. Hundreds of these women were sitting there. Not only they had lost their husband, but the hospitals had given them enormous bills. 150,000, 200,000. It's impossible to think of this. It's impossible not to realize that these people whom you call our citizens are really suffering global evil at night. It's a painful experience. But now I will just share a short quote with you regarding the situation of the kind of thing that we've been talking about. हम भारत के वासी क्रिश्चियन मुस्लिम लाखों जगह पे हमने फिर भी हम पे अत्याचार भरे शहर में बार-बार ये कैसी आजादी नफरत की आबादी है और हमारी बर्बादी है जट नेता सामने आओ आओ बिठाओ हम पे मत इल्जाम लगाओ अपने बच्चों को समझाओ हर व्यक्ति का मान बढ़ाओ मानवता की शान बढ़ाओ इसी में सब then I will just end it with Gandhi's 9 verse. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान Thank you, Professor Bhagat. Next, I'd like to invite Dr. Mike House. Dr. House is a social scientist, public speaker, thinker, author, and an interfaith wedding officiant. He is deeply committed to pluralism in religion, politics, societies, human rights, and religious freedom. He's a founder and president of the Center for Pluralism, director at the World Muslim Congress, a think tank. And his new book, American Muslim Agenda, is available on Amazon. And Standing Up for Others, Madam President, are coming soon. So we are delighted to have him here. He is committed to building cohesive societies and offers pluralistic solutions to problems of the day. Dr. Raj. Thank you. Can you hear me in the back? Yes. मुझे बड़ी खुशी हुई अगर सबकी बेटी ने कहा 70 साल की मैं भी 70 साल का मैं भी 70 साल का हूँ Indian Muslims and Christians are exemplary communities. They believe in non-violence and have lived up to it. I'll share a few notes in the given time. Since 2014, Muslims have endured nearly 200 lynchings. They have witnessed their daughters prevented from entering schools with hijabs, something they have been wearing for almost 1400 years. The extremists have also barged into Christian homes and churches and regularly harassed them. The extremist elements chased away Muslim fruit and vegetable vendors to earn their livelihood. They are hell-bent on removing every symbol of Muslims and even rewriting the history. हमारा नाम और निशान मिटाने के लिए तुले हुए extremists. What did the Muslims do in response? It's a question you have to think about. Yes, what did the Muslims do in response? What would you do if you were them? I will mention it at the end in a few moments.
Once again, please remember, this is very important. I have addressed this in many places. Hindutva has nothing to do with Hinduism. Over the last 80 years, I have made a point to tell in all gatherings that to make sure people don't blame Hindus for the wrongdoing of Hindutva. Hindutva is a political movement like the Nazis, the white supremacists, ISIS, and Al-Qaeda, and other right-wing groups. Not only I speak, but I wrote an article called Hindutva is not Hinduism. It is available at the Center for Pluralism.com website. I have cited many articles to that reference as well as videos. When the world was blaming Muslims for the act of Al-Qaeda and ISIS, we, the Muslims, protested and made an effort to correct them. It is not Muslims stupid, but ISIS. Likewise, it is not Hindus stupid, it is Hindutva. We need to make clear distinction. And in our words, when we say Hindus, it is wrong, it is not Hindus. It will offend doctors and those Hindus who are doing the right thing in the nation. What Hindus forces have been trying to do is to radicalize Muslims through constant provocation, how the beef ban was imposed, mob lynching, targeted action against slaughterhouses, controversy over namaz and azan, seizing property. All these provocations, Muslims did not take the bait. The most important thing I want to share, I'll cut down what I was going to say because of the time limit. When all this was happening, Muslims, this is very important, did not even entertain the thought of retaliation, the thought of taking revenge, the thought of getting even. And that is truly non-violence act. And that is very important. And Muslims will continue not to do that, but there is a limit for everything. You cannot be pushed to the corner. When you have no choices, you will resort to defending your own families. And we need to avoid that. When you get to that stage, India is going to be in trouble. Everybody, Hindus, Muslims, and every citizen will be in difficult times. There are two short notes I want to share. Where the Muslims non-violence comes from. Prophet Muhammad, peace be upon him, I'll make it brief. When he was visiting Taif in Saudi Arabia, he was pelted with stones. He was bleeding. He was hurt. His associates tell Prophet, we're going to go beat up those guys who are throwing stones at you. The Prophet said, no, we can't do that. Then the angel Jibreel comes. Prophet, if you permit me, I'm going to squeeze them in mountains and crush them. Prophet Muhammad, peace be upon him, said no. Instead, what did he do? He prayed for their well-being. And not only that, he asked God guidance to give it to them so they can be the righteous person. There is something Jesus also said, turn the other cheek. What does it mean? आप और मैं झगड़े में आपने मुझे गाली दी तो मैं आपसे बढ़ चढ़ के गाली देता हूँ आपने मुझे तमाचा मारा मैं भी मारूंगा आपको बात बढ़ती है and what Jesus was saying is turn the other cheek means don't respond बात को मत बढ़ाओ जब झगड़ा हो रहा है तो violence को रोको stop that and these two are the reasons Muslims and Christians have chosen to be non-violent in India and everybody should admire, respect and all that. This fact is not recognized. I think we need to highlight this and talk about this and it is very important. Now, last few seconds left. There is a hope. There is a hope. Lord Krishna had promised that whenever adharma takes root in the society, adharma means chaos, conflicts, confusion. He had promised that somebody among you will emerge, or someone among you, I will re-emerge and restore dharma, that is righteousness. तो मैंने एक छोटा शेर लिखा है कि पूरी नज़म है उसमें सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ दोस्तों उम्मीद पे दुनिया जीती है ना किसको याद नहीं श्री कृष्ण की पेशन गोई जब भी अफरा तफरी
इंतहा पर पहुंचती है वो किसी ना किसी के रूप में आएंगे इंसानियत को दोबारा कायम करेंगे थैंक यू वेरी मच Dr. Gauss. Next, I would like to invite Dr. Raziruddin. Dr. Raziruddin is a scientist at the National Cancer Institute at NIH, Bethesda, Maryland. He was educated both at Aligarh Muslim University and PhD from where he got his PhD, Banaras Hindu University. He's a native of Azamgarh, UP. He's also a founder of the Indian Diaspora Washington DC Metro Forum, which I think a lot of us have now been accustomed to watching and participating every Saturday. He's a senior member of the Aligarh Alumni Association of Washington DC. He has been a long-time social activist and poet. It's my pleasure to invite. बहुत बात हो चुकी है तो मैं ना मॉरलिस्ट हूँ न स्पीकर हूँ न पॉलिटिशियन हूँ न पॉलिटिकल थाट्स रखता हूँ मैंने जो ऑब्जर्व किया है व्हाट इज लैकिंग रियली इस कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये कांस्टेंट फाइट ओवर अ सेंचुरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक ही चीज की रही है वन फोर्स इज विच इज ऑल इंक्लूसिव सेक्युलर it doesn't count religion as a reason, or it is always a private thing. And the other force is always identity. They identify with religion or a particular culture. So this is a constant fight. And movement is almost since almost 1905. So ये इस वक्त जो है चाहे वो कांग्रेस के दारूल का असर हो चाहे कुछ और कॉन्शियसनेस उभर गई हो इथनिसिटी की उसकी वजह से बहरहाल एक पर्टिकुलर पार्टी और आइडियोलॉजी जो बहुत डिसिप्लिन से काम कर रही थी वो इस बार वो इस वक्त अपर हैंड पे है आपकी फाइट बेसिकली इस आइडियोलॉजी से आपकी फाइट न उसमें रहने वाले पर्सन कोई हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या एथनिसिटी उस आइडियोलॉजी से इंडिया का सर्वाइवल और डिस्ट्रक्शन दोनों इसी बात पे रहेगा कि वो आइडियोलॉजी को आप कंटेन कैसे करें उसमें हम तैयार नहीं हो पाए दैट्स द होल थिंग व्हाट मैटर्स इज इनसाइड इंडिया और हियर आल्सो वी आर नॉट यूनाइटेड वी आर नॉट कैपेबल एनफ और मैं ऑब्जर्व करता हूँ स्पेशली इधर मैंने ज्यादा रियलाइज किया आफ्टर ऑलमोस्ट since 2.5 years there is not a single major figure left for me in India and even Pakistan. जो इस फोरम पे आके एक ही बात को नहीं कहता you have to unite. बड़ी बात करना बेकार है रिसोर्सेज जो भी आपके हैं उसको इंटरेक्ट करें दूसरे से कोई सी फोर्स बने become more visible rather more aggressive and बहुत ही फोकस ऑब्जेक्टिव के साथ करें our job is not to take on anybody rather to contain a poisonous ideology and sustain with the other ideology which is all-inclusive इसमें हमको यहाँ भी काम करना है वहाँ भी है आपके रेस्पेक्टिव आइडियोलॉजीज जो भी हो पर्सनल उससे इसका कोई मतलब नहीं कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे फोकस आइडियोलॉजी पे लेके लोकल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ चले और अच्छी बातें करें जिससे जो है वो इम्पैक्ट करें दैट्स ऑल थैंक यू Our last speaker is Mr. Ali Kawaja, a pillar of the community here. He is the executive director and founder of a 35-year-old NGO called the Association of Indian Muslims of America. He's a long-time participant in various Indian organizations in the Metro DC area. He has been front and center in a wide range of activism focused on India's pluralism here in the DC area. And it is a pleasure to have him here today. He's also a project formulation manager at NASA. Yeah.
दोस्तों, त्रिपाठी साहब ने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, त्रिपाठी साहब ने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन देखिए, ऐसा है आजकल के जमाने में, जबकि हमारे पास सारी चीजें within few hours we get everything on Facebook, हमको सब पता है। और हम लोग जो इंटेलेक्चुअल को कहते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, और जो हिंदुस्तान में भी मिडिल क्लास हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल टू डू, और यहाँ पर भी हैं, हम उसको बड़ा डिस्कस करते हैं और बार बार डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हुजूर, जैसे कि अपने कैफी आदमी साहब ने कहा, बहुत अंधेरा है, एक दिया जलाओ, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, इस दीवार में दरवाजा खोलो, फिर रास्ता निकालो। तो हुजूर, जरूरत रास्ते की है, जरूरत डिस्कशन की नहीं है। डिस्कशन तो बहुत हो गया था। देखिए, त्रिपाठी साहब ने रास्ता निकाला, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, गरीबों से मिले, अमीरों से मिले, बीजेपी के लोगों से मिले, ये रास्ता निकाला ना। तो हम अगर यहाँ इसको डिस्कस करते रहेंगे, खास तौर से हम लोग जो अमेरिका में रहते हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हम बड़े काबिल हैं साहब, हम बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन हुजूर, उससे क्या फायदा होता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है? तो रास्ता निकालिए प्लीज। जैसे कि किसी ने कहा ना, दीवार तो बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें एक रास्ता निकल सकता है, अंधेरा तो बहुत है, एक दिया जाए। तो देखिए, हम लोग जो है ना, अब देखिए कि हिंदुस्तान में बहुत अभी 2 साल पहले दिल्ली में बहुत बड़ा हंगामा हो गया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़े डेमोलिशन हो गए, बड़े लोगों को हो गया। अभी आपका यहाँ पर ये जहांगीरपुरी में इतना बड़ा हंगामा हुआ, इतना डेमोलिशन हो गया। तो उन लोगों की जो मर गए, जो वैसे ही गरीब थे, उनके छोटे घर भी तबाह हो गए, उसकी हमने क्या मदद करी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सवाल। हम लोग जो यहाँ रहते हैं, जरूर हम थोड़ा बहुत पैसा स्पेयर कर सकते हैं, तो हम उनकी मदद क्यों नहीं करते? त्रिपाठी साहब के ऐसे लोग हैं, और भी लोग हैं, हर्षमंदर साहब के ऐसे लोग हैं, और भी लोग हैं, उनके थ्रू हम कुछ उनकी मदद करें। जो लोग त्रिपाठी साहब के ऐसे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत सोर्सेज की जरूरत है ना, वो पहले तो चल के नहीं आ सकते पूरे हिंदुस्तान में। तो देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने क्या किया। मैं सब लोगों को ये सोचना चाहता हूँ, खुद सोचिए आप कि आपने क्या किया। आपके दिल में दर्द है, आपके दिमाग में दर्द है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बहुत। और हमने फंक्शन किया बहुत बहुत। अब क्या हम यहाँ से वापस जाएंगे तो क्या भूल जाएंगे, क्या सो जाएंगे, क्या फिर टीवी ऑन कर देंगे, क्या करेंगे? तो कुछ त्रिपाठी साहब ने जो बताया, उसके पर कुछ एक्शन तो लेना चाहिए ना। तो हमारी, अब देखिए, आप तो बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, लोग कहेंगे कि भाई आप बुरा कह रहे हैं मुझे, मैं तो अपना बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं पैसा भी देता हूँ, ये भी करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि हमें से बहुत से लोग अपना काफी वक्त डिस्कशंस में लगाते हैं, डिस्कशंस में, ईमेल एक्सचेंज करने में, किताब पढ़ने में। वो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन प्लीज जरा सा मदद कीजिए, थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी कीजिए। देखिए, प्रोटेस्ट करना, अब देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है पिछले एक महीने में। यूपी की क्या हालत हो गई है कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वो बुलडोजर जाता है, आपको आपके रात के घर में आके जाता है और मकान को डिमोलिश कर देता है। कोई लॉ नहीं है साहब। त्रिपाठी साहब से पूछिए, किसी को नोटिस भी नहीं दिया गया कि उन्होंने क्या जुर्म किया। रात में 12 बजे डिमोलिश। देखिए, इसमें सिर्फ मुसलमान विक्टिम नहीं है, इसमें बहुत से हिंदू विक्टिम हैं, बहुत से दलित विक्टिम हैं। 3/4 ऑफ इंडिया की जो हिंदू हैं, वो गरीब लोग हैं, दे आर विक्टिम्स। पुलिस का जुर्म इतना बढ़ गया है कि आज की पुलिस हिंदुस्तान की, मैं भी हिंदुस्तान में रहता था, मैं भी वहां पढ़ा, मैंने कभी हमेशा से पुलिस का जुर्म रहा। लेकिन जो जुल्म आजकल है, ऐसा लगता है कि जमींदार 100 साल पहले वाले जमींदार वापस आ गए। किसी की लड़की को उठा ले गए, किसी का मकान तबाह कर दिया, किसी को पीट दिया। तो सब साहब के कैसे खत्म होगा? ये हिंदुस्तान किधर जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान किधर जा रहा है? सिर्फ अफसोस करने से और रोने से तो हमें नहीं होगा, कुछ हेल्प कीजिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि त्रिपाठी साहब हमारे लिए बहुत गोल्डन रिसोर्स, इनके थ्रू हम बहुत से लोगों को डिस्कवर कर सकते हैं, उनके थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पर भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे त्रिपाठी साहब ने बताया, हर प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या किया, जब दांडी मार्च हुई, महात्मा गांधी, एक लॉ बन गया था, लोगों ने बना दिया लॉ कि आप शॉर्ट नहीं बनाएंगे। महात्मा गांधी अपने लोगों को लेकर के गए और वहां पर वो शॉर्ट बनाया।
जब वापस आए उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको मजिस्ट्रेट ने कहा कि व्हाई यू डिड दिस एंड ऑल दैट, उन्होंने कहा इट्स माय कंट्री। मजिस्ट्रेट ने कहा ओके आई गिव यू बेल। महात्मा गांधी सेड आई डोंट वांट एनी बेल। उसने कहा मजिस्ट्रेट ने आई विल गिव यू बेल फॉर 1 rupee, 1 rupee। गांधी सेड आई रिफ्यूज टू गिव 1 rupee इन द बेल बिकॉज़ आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। सो अगर हमको गांधी को फॉलो करना है, गांधी आज भी जिंदा है, ये सोचना कि गांधी खत्म हो गए बहुत गलत। आज भी गांधी जिंदा है। जैसे भाई साहब ने बताया, गांधी की जो थिंकिंग है, गांधी जी ने हमको जो बताया, उनकी बहुत एग्जाम्पल्स है, मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता। तो हम अगर ये देखिए, कोई वायलेंस नहीं है, कोई कंफ्रंटेशन नहीं है, कोई कमिटी, हम अगर गांधीज्म को फॉलो करें, जो पहले हमारे जमाने में बहुत से बुजुर्ग हुए, बड़े ग्रेट लोग, आज के जमाने की गांधी जी, हम उनको फॉलो करें, हम त्रिपाठी साहब को फॉलो करें। थैंक यू। So thank you very much. I think कि जो जिस passion से आप बोल रहे हैं, and you've given words to a lot of the sentiments that we feel, and I think I have to say one thing about Kaleem uncle कि पिछले 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि कभी भी कोई issue होता है, he is one of the first people in the community to organize, and I want to thank him for that on behalf of the community and all the issues. हमारे बीच में एक और स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर हसन कमाल अटलांटा से आए हुए हैं, and I would request Kamal to come here and say a few words. He has been a pillar of the Bhav mission and pluralism for the longest time. He's done this remarkable work in Atlanta and in India, and a lot of success the Bhav mission has enjoyed over the last few years comes from his help, his support, and it's a privilege of ours to have him here. ये बताइए कि मेरे साथ इंसाफ में कलीम ख्वाजा के बाद मेरा नंबर आ गया। हाँ कलीम साहब, एक नाम कलीम, दूसरा ख्वाजा, मैं क्या कर सकता हूँ सकता हूँ, मगर एक बात जरूर वो इनकी मदद कर। ये बात तो कलीम साहब ने कहा है, उन्होंने जो बात कही है, मदद करनी चाहिए तो सबसे बड़ी मदद इस वक्त है, तो आप लोग अपना दिल गरम कीजिए और जो भी कर सके उनकी मदद करें। इंसिडेंटली क्योंकि ज्यादातर वो जहाँ जाते हैं, वहाँ जहाँ जुल्म होता है, वो जो मजलूम होते हैं वो होते हैं मुसलमान, तो उनको ज़कात का पैसा, मैं ज़कात का पैसा इनको देता हूँ और हिसाब भी देता हूँ, और ये हमको हिसाब भी देते हैं कि हाँ हमने वो पैसे सही जगह पर खर्च किए। इंशाअल्लाह काम होगा। We have a few minutes for question and answer, but उससे पहले I'm going to ask Papa to come over and talk about this signature campaign that he is launching, and I think आप सबको कागज मिला है. So we'll say a few words about that, and then we'll open the floor for a few minutes for a few questions. ऐसा है कि I have given you a note, वो सिग्नेचर कैंपेन के लिए है, उसका नाम लेने की वजह ये है, लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया gave a call that we should observe August 14 as Partition Horror Remembrance Day, and we have already seen what he implies by this. They imply by this they want to project one community as the victim and another community as the offender, whereas partition was a calamity for all communities, Sikhs, Hindus and Muslims. And I gave you an example about Punjab violence. So I think this of placing one community against another community is a gross inhuman act on the part of the government, and we have recently seen the Kashmir Files movie. In the garb of that, they projected the pain of only one community, Kashmiri Pandits. It was certainly very sad, but then they forgot the other dimension, which is even
much more devastating. For how much, 32 years, Kashmiri masses have been bearing the presence, a horrifying presence of army, 5 lakh army. Nearly 80,000 people have been killed. तो अगर इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे कि साहब वो जैसे कि कहीं हिंदू मर गए और मुसलमानों को, और वैसे भी मारने वाले तो बता दूं आपको कि ना यहाँ हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा, ना किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा. They were gangs of criminals who did it. 562 रियासतें थी हिंदुस्तान की, और उनके बीच में सबके अपनी मिलिशिया होती थी. उन लोगों ने मिलकर मारा लोगों को, क्रिमिनल एलिमेंट को जोड़ दिया साथ. So consequently, we should not blame any community and we should feel the pain of all communities equally. तो मैं कहता हूँ कि 15 अगस्त को ही हम अपने बुजुर्गों की शहादत को भी याद करें और अपने अंदर निरीक्षण करें कि हम इस तरीके का कभी माहौल नहीं पैदा होने देंगे कि किसी एक बेकसूर आदमी को मारा जाए, एक जुनून पैदा किया जाए. So we should remember, we should celebrate August 15 as a day of introspection and freedom. तो इस बात के लिए मैं चाह रहा था कि एक सिग्नेचर कैंपेन का मजमून आपको दिया है, आप उस पर अभी साइन कर दें या घर जाके 10 लोगों के साइन और करा के फिर मुझे इसकी स्कैन करके कॉपी ईमेल पे भेज दें या ईमेल पे उनके नाम भेज दें, जैसा मुनासिब समझे, लेकिन इसमें आपकी जरूरत है. जी बहुत बहुत शुक्रिया. Put that document on Google Docs. हाँ, Continuously updated messages. अच्छा बात करूंगा. I'm gonna say that we skip the question and answers because I think we're running out of time. I have a question for the party. Okay, we'll make this one question. जी जी नहीं एक क्वेश्चन ले लिया जी. खालिद साहब लंबा क्वेश्चन मत कीजिए. A lot of people are asking exactly how we can help you. That you said not how it's ऐसा है कि सद्भाव मिशन is not eligible for taking foreign funds from organizations, but from friends I take money because of the total money that we have been collecting over the last several years is around $4,000, $5,000 a year. That's the kind of expenses we have. And if somebody wants to contribute to a specific cause, for instance, आपने कहा था कि जहांगीरपुरी में जो बर्बादी हुई, so what I can do that I will go to India on August 5. I will meet